टू माय चैनल। सो इसमें हम लोगों को देखने को मिलेगा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्ज़ाम एंड सभी इंक्लूड किया गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किया गया है, डैफोडिल, सोनेट 18 और सभी कुछ। सो ये स्टार्ट करते हैं। तो यूज़ ऑफ इमेजिनरी इन शेक्सपियर सोनेट 18 एंड शैल आई कंपेयर दी टू समर डेज का लेकर ये क्या क्या इमेजिनरी यूज़ किया गया है। आप लोग एक बार स्टॉप कर लेना और अपना आंसर नोट डाउन कर लेना। तो ये हम लोगों का फर्स्ट क्वेश्चन है एंड डिस्कस हाउ नेचर इज़ रिप्रेजेंटेड थ्रू द आइज ऑफ पोएट इन विलियम वर्ड्सवर्थ। कैसे उन्होंने अपना वर्क में रिप्रेजेंट किया गया नेचर्स को। तो ये डैफोडिल पोएम है। तो विलियम वर्ड्सवर्थ आई वंडर लोनली एज क्लाउड पॉपुलरली नोन एज डैफोडिल। इस क्वेश्चन इज क्विंटेंशियल रोमांटिक पोएम दैट सेलिब्रेट्स द ब्यूटी वाइटलिटी स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस ऑफ नेचर। तो नेचर से ही डील किया गया ये पोएम एंड ये रोमांटिक पोएम है। तो इनका वर्ड ज़्यादातर नेचर रिलेटेड ही है, नाइट एंगल एंड ऑल। फिर वर्ड्सवर्थ प्रेजेंट नेचर नॉट merely a scenery but a living breathing force। ऐसे क्रिएट कर रहा है कि ब्रीथिंग फोर्स दैट इंटरेक्ट विथ ह्यूमन सोल, ऑफर solace, joy, inspiration। The poem began with a mood of isolation, emotional emptiness. As the poet says, I wander lonely as a cloud. The simile set the tone of detachment, aimlessness, and the cloud floating above the world evokes a sense of spiritual drifting. But this solitude is soon interrupted by experience, stumble a host of golden daffodils. The daffodils are described in vivid visual kinetic imagery, flirting and dancing in breeze continuous as the star that shine, tossing their head in sprinkling dance. The portrayal animates nature, make the daffodils seem almost human in their joy. Wordsworth employ personification repeatedly, turning the flower into living companion that perform a cheerful dance. This is not only reflects the poet emotional awakening but also suggests a deep harmonious connection between nature and man। और ये अच्छी तरीके से डिस्कस किया गया है। और हम लोगों का ये जो डैफोडिल पोएम है, द स्केल ऑफ डैफोडिल स्ट्रेचिंग नेवर एंडिंग लाइन along the lake suggests the divine presence of nature. Their number 10,000 evoke sense of sublime, a feeling often explored by romantic poet who sought to capture the majesty and mystery of natural world. What's it Wordsworth approach of art is emphasis on memory and emotional reflection. In final stanza, we see the impact of encounter long after it end, even when the poet is alone again in vacant or in pensive mood. The image of daffodil returned to him, his heart filled with pleasure and dances with daffodils. This reveals Wordsworth belief in lasting meditative power of nature, which can continue to nourish the mind and soul through memory and imagination. The poem also reflects romantic ideal simplicity, natural beauty, and emotional depth. Wordsworth avoid complex diction, using simple language to express profound truth. His admiration of nature is not based on scientific explanation but on its emotional and spiritual resonance. In conclusion, Wordsworth presents nature as a benevolent, almost divine force that brings joy, emotional healing, and spiritual fulfillment through the imagery of dancing daffodil and power of memory. The poet conveys that nature is not passive or decorative but active, deeply connected to human well-being. The daffodil becomes symbol of nature's eternal gift to mankind, a source of inner joy, peace, and inspiration that transcends time and physical experience। ये क्रिटिकल एप्रिशिएशन है। तो देख लेना आप लोग क्रिटिकल एप्रिशिएशन एंड नोट डाउन कर लेना। मैं धीरे धीरे स्क्रॉल डाउन कर देती हूँ। और ये अच्छे तरीके से एक्सप्लेन भी किया है और क्वेश्चंस बहुत सारे हैं एंड हेल्प भी करेंगे ये सब क्वेश्चंस आपको अपने एग्जामिनेशन के नोट्स प्रिपेयर करने में। एंड नेक्स्ट मैंने इंक्लूड किया है वर्ड मीनिंग, डिज़ायर क्या होता है, फीबल क्या होता है, डिनाइड क्या होता है, एंड इसका मीनिंग्स को मैंने लिखा है। एंड ऐसे करके हम लोगों को दिया गया था एग्ज़ाम में टोटल 8 एंड यू हैव टू अटेम्प्ट फॉर योर एग्जामिनेशन एटलीस्ट 5। रिमूव किया जा सकता है 3। एंड ये सब जो वर्ड्स है, tranquil, grasp, seize, गिडल, pensive, deep in thought, often with touch of sadness। और नेक्स्ट हम लोगों का शेक्सपियर का हम लोगों का 18 है और शॉर्ट में एक्सप्लेन करना है। सेम इसमें भी 5 अटेम्प्ट करना है। तो आप लोग थोड़ा सा देख लेना कि क्या बोलना चाहता है। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट डज शेक्सपियर मीन व्हेन ही सेज इट the eternal summer shall not fade। अकॉर्डिंग टू मिल्टन, हु आर दोज पीपल हु सर्व गॉड बेस्ट। कौन है जो सर्व करता है? तो मिल्टन बिलीव दैट दोज हु एक्सेप्ट गॉड विल विथ पेशेंस एंड ह्यूमिलिटी serve him best even they are unable to act to be productive due to physical limitation। their quiet vagueness is equally valuable in the eyes of God। what does the John mean? The they who one keep alive never parted be।
Done means the lovers who emotionally, spiritually united keep each other essence alive. Even if they are physical separated or die, their deep bond ensures that they are truly apart. फिर है हम लोगों का व्हाट डज मीन बाय साइन्यूज ऑफ हार्ट, तो देख लेना क्या है। फिर उसके बाद डैफोडिल रिलेटेड क्वेश्चन कि व्हाट डज व्हाट्सवर्थ मीन व्हेन ही सेड डैफोडिल वे आर वेल्थी सो टू हिम, offered him not material wealth but a deep sense of emotional richness and joy. Their beauty gave him mental treasure that stayed with him long after moment passed. जो beauty stay करता है उनके माइंड में वो जान के बाद भी स्टे करता है। What does टर्बी eve and flow mean, क्या मतलब है देख लेना। फिर कोस्ट मेंशन किया गया है, तो दो कोस्ट है are inland from speaker view the sea and France which lie across English Channel। डिस्कस किया गया है ये रिवर के साइड में ही ये पोएम प्लेस हुआ है। दिस कोस्ट फ्रेम द सिटिंग एंड सपोर्ट द थीम ऑफ डिस्टेंस चेंज एंड अनसर्टेनिटी। व्हाट डज ब्लेक मीन बाय फायर ऑफ दाइन आइज, ब्लेक का क्या रिफर किया है, तो बर्निंग एनर्जी इन टाइगर आइज क्या रिफर किया है वो थोड़ा रीड आउट कर लेना। एक्सप्लेन विद द कॉन्टेक्स्ट, ये कॉन्टेक्स्ट का लाइन्स है एंड इसको कुछ एक्सप्लेन किया गया है। तो ये लाइन डैफोडिल्स बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। द पोएम compared the daffodil countless star in Milky Way, suggesting that the flowers seemed endless and in number and full of brilliance. This simile connect nature with cosmos, showing how nature can evoke Eve and the wonder just like star. It also suggests that nature is eternal and divine, offering beauty and peace beyond human experience, and that one talent which is there to hide। ये सब जो लाइन्स है देख लेना क्या लाइन्स है एंड इसको भी एक्सप्लेन कर दिया गया है कि क्या लाइन्स है एंड ऑल, एंड दैट वन टैलेंट विच इज़ देयर टू हाइड क्या बोलना चाहता है। फिर सफोकल्स के लॉन्ग एगो क्यों यूज़ किया गया ये पोएम। फिर विलियम ब्लेक का अगेन टाइगर पोएम, मैं डिस्कस नहीं कर रही हूँ बट आप लोग ले नोट डाउन कर लेना। एंड नेक्स्ट है ये सब जो फ्यू लाइन्स सोनेट 18 से अगेन कुछ राइज किया है इंपॉर्टेंट लाइन्स। फिर हम लोगों का क्रिटिकल नोट लिखा गया है सोनेट 118 18 है तो हम लोगों का। एंड क्या कॉन्फ्लिक्ट है क्या मेटाफर है सब कुछ को इंक्लूड किया गया है। एंड एनालिसिस ऑफ व्हाट्स फॉर डैफोडिल, डैफोडिल का एनालिसिस भी करके मैं इंक्लूड किया अपना नोट्स प्रिपेयर उतना डिस्कस ना करके आप लोग स्टॉप करना वीडियो और स्क्रीनशॉट ले लेना और अपना नोट्स प्रिपेयर कर लेना। एक बार रीड आउट कर लेना, कुछ आइडिया मिले या और भी हेल्प या क्वेश्चन जो भी डाउट वाउट है वो भी कमेंट डाउन करना। सो ये हम लोगों का नोट्स है फॉर 10 मार्क्स से अच्छा खासा पॉइंट मैंने इंक्लूड किया है। एक्सपैंडेड नोट ऑन मिल्टन फेथ इन गॉड इन ऑन हिज ब्लाइंडनेस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पोएम है एंड जॉन मिल्टन तो बहुत ही फेमस है पैराडाइज लॉस्ट के लिए एंड उनका ये वर्क है। तो स्टॉप कर लेना और रीड आउट कर लेना, जहाँ भी डाउट हो क्वेश्चन करना कमेंट में। So these are few points you should include in your answer and सो लास्ट लाइन रीड आउट कर लेती हूँ क्योंकि मैं एंड करने वाली हूँ। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम इंग्लिश एंड दिस इज़ फॉर सेमिस्टर 4 इंग्लिश प्रोग्राम। एंड इंग्लिश प्रोग्राम नहीं भी रहेगा तो ये एक इम्पॉर्टेंट पोएम है का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड अगर किसी के भी सिलेबस में डैफोडिल हम लोगों के यहाँ पे मैंने डिस्कस किया सोनेट 18 एंड टाइगर, ये सब पोएम हर एक सिलेबस के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए नोट्स प्रिपेयर करने के लिए आप लोग हेल्प ले सकते हैं। In conclusion, on his blindness is not only a personal expression of Milton's struggle, but also a universal message about faith, patience, and inner strength. It stands as testament to how deep religious conviction can transfer suffering into form of spiritual service. Okay, so yeah, that's it for this video. And thank you for watching this video. Don't forget to like and subscribe my channel. See you in my next video. Till then, take care. Stay tuned. Bye.